Introduction. Biology is a branch of natural sciences which deals with the study of living beings. It provides the knowledge about living organisms which differ from each other in shape, size, composition, etc. The word biology comes from Greek language bios, meaning life, and logos, meaning thought or reasoning. Thus, biology means study of life. What is life? Life cannot be defined properly, but on the basis of life processes, it can be identified through following functions of living organisms: digestion, respiration, metabolism, movement, growth, development, excretion, irritability, reproduction. 1.1 Divisions and branches of biology. 1. Division of biology. There are three major divisions of biology. I. Zoology. The word zoology is derived from Greek language, zoon, meaning animals, and logos, meaning study or knowledge. It deals with the study of animals. E. Botany. The word botany is taken from Greek language, butane, meaning plants, and logos, meaning study or knowledge. It deals with the study of plants. E. Microbiology. It deals with the study of microscopic organisms such as bacteria, etc., which can be seen only with the help of microscope. 2. Branches of biology. Modern biology deals with the structure, function, and many other descriptions of living things. Advanced research during the 20th century has led to the division of biology into specialized branches. Some important branches are defined below. I. Morphology. Gr. Morph. Form, logos, discourse, the study of external form and structure of organisms. E. Anatomy. Gr. Ana. Part, up, tome, cutting, the study of internal parts of body of living organisms by cutting them open. E. Cell biology. L. Cell, compartment, gk. Bios equals life, logos, discourse, the study of cell and its organelles. IV. Histology. Gr. Histos, tissue, logos, discourse, the study of structure of tissues of plants and animals. V. Physiology. Gr. Physis, nature, logos, discourse, the study of functions of living organisms. V. Taxonomy. Gr. Taxis, arrangement, nomos, name, the study of rules, principles, grouping and naming of living organisms. V. Genetics. Gr. Genesis, descent, origin, the study of heredity, that is transferring of characters from parents to offspring. V. Developmental biology. Gr. Embryon, embryo, logos, discourse, the study of formation and development of embryo. बायोलॉजी नेचुरल साइंसेस की एक ब्रांच है जो जिंदा मखलूक, लिविंग बीइंग्स, का स्टडी करती है। ये हमें जिंदा ऑर्गेनिजम्स के बारे में मालूमात देती है जो एक दूसरे से शेप, साइज और कॉम्पोजिशन वगैरह में मुख्तलिफ होते हैं। बायोलॉजी का लफ्ज ग्रीक लैंग्वेज से आया है जहां बायोस का मतलब जिंदगी और लोगोस का मतलब सोच या रीजनिंग है। इसलिए बायोलॉजी का मतलब जिंदगी का इल्म, स्टडी ऑफ लाइफ, है। लाइफ क्या होती है? लाइफ को प्रॉपर डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन लाइफ प्रोसेसेस की बुनियाद पर हम जिंदा चीज़ों को पहचान सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ फंक्शंस ये हैं: डाइजेशन, गीज़ा का हजम होना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, मेटाबॉलिज्म, जिस्म के अंदर केमिकल प्रोसेसेस, मूवमेंट, हरकत, ग्रोथ, अफजाइश, डेवलपमेंट, नाशोनुमा, एक्सक्रीशन, पुजला बाहर निकलना, इरिटेबिलिटी, एहसास और रिएक्शन देना, रिप्रोडक्शन, नस्ल बरकरार रखना या अफजाइश नस्ल। 1.1 बायोलॉजी की डिविजन्स और ब्रांचेस। 1. बायोलॉजी की डिविजन्स। बायोलॉजी की तीन मेजर डिविजन्स होती हैं। आई. ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी का लफ्ज़ ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जहां जून का मतलब जानवर और लोगोस का मतलब इल्म या स्टडी है। ये जानवरों के स्टडी से रिलेटेड है। ई. बॉटनी। बॉटनी का लफ्ज़ ग्रीक लैंग्वेज के लफ्ज़ ब्यूटेन से लिया गया है जिसका मतलब प्लांट्स है और लोगोस का मतलब स्टडी है। यह प्लांट्स के स्टडी से रिलेटेड है। ई. माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी उन बहुत छोटी जिंदा चीज़ों का स्टडी है जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जा सकती है। बायोलॉजी की ब्रांचेस। मॉडर्न बायोलॉजी जिंदा चीज़ों की स्ट्रक्चर, फंक्शन और दूसरी तफसीली मालूमात से डील करती है। 20th सेंचुरी में एडवांस रिसर्च की वजह से बायोलॉजी को मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ये हैं। 1. मॉर्फोलॉजी। इस ब्रांच में ऑर्गेनिजम्स की बाहर वाली शक्ल और स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है। 2. एनाटॉमी। इसमें जिंदा चीज़ों के जिस्म के अंदरूनी हिस्सन का स्टडी किया जाता है, जिस्म को कट करके। 3. सेल बायोलॉजी। इस ब्रांच में सेल और अस के ऑर्गेनेल्स का स्टडी होता है। 4. हिस्टोलॉजी। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज की स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है।
5. फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में जिंदा चीज़ों के फंक्शंस का स्टडी किया जाता है। 6. टैक्सोनॉमी, इस ब्रांच में जिंदा मखलूक को ग्रुप करना, नाम देना और रूल्स और प्रिंसिपल्स का स्टडी होता है। 7. जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हेरेडिटी का स्टडी है, यानी वालिदैन से बच्चों में सिफत का ट्रांसफर होना। 8. डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इस ब्रांच में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट का स्टडी किया जाता है। 9. Environmental biology, the study of relationship between living organisms and non-living factors of environment and their effects on each other. 10. Paleontology, gr. Palaios, ancient, ontos, being, logos, discourse, the study of remote past organic life, with the help of fossils. 11. Biotechnology, the study about techniques for manipulation of gene to bring the changes in structure and location of genes to achieve desirable characters is called biotechnology. 12. Sociobiology, el sociare, to associate, the study of social behavior of living organisms, i.e. interaction between themselves. 13. Parasitology, gr. Para, up, the study of parasites. 9. एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी जिंदा मखलूक और एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग फैक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप और एक दूसरे पर अन के असरात का स्टडी है। 10. पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी में कदीम ज़माने की ज़िंदगी का स्टडी किया जाता है, जो फॉसिल्स की मदद से मालूम की जाती है। 11. बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में जीन्स को मैनिपुलेट करने की टेक्निक्स का स्टडी होता है, जिससे जीन्स की स्ट्रक्चर और लोकेशन में तब्दीली लाकर पसंदीदा सिफत हासिल की जाती है। यानी कर जीनियाती तब्दीली के तरीकों का मुतायला जो जीन्स की साख्त और मुकाम में तब्दीली लाकर मतलूबा खुसूसियत हासिल करने के लिए किया जाता है, इससे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वो इल्म है जिसमें जीन्स को तब्दील करके नई और बेहतर खुसूसियत हासिल की जाती हैं, जैसे कि ज़राअत में बेहतर पैदावार, बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत या इंसानों में जीनियाती बीमारियों का इलाज। 12. सोशियोबायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी जिंदा मखलूक के सोशल बिहेवियर का स्टडी है, यानी अन का आपस में इंटरेक्शन और ताल्लुक। 13. पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी पैरासाइट्स की स्टडी है। ये इल्म है जिसमें पैरासाइट्स को स्टडी किया जाता है, उनकी अनवा, जिंदगी के चाकर, ताज़े जिंदगी और उनके मेज़बानों, होस्ट्स, पर असरात का जायजा लिया जाता है। 14. Pharmacology, gr. Pharmacome, drug, the study about action of drugs. 15. Molecular biology, the study of organic molecules which constitute cell and its organelles. 14. फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी दवाओं के असरात और अन के एक्शन का स्टडी है। 15. मोलेक्यूलर बायोलॉजी, मोलेक्यूलर बायोलॉजी अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्टडी है जो सेल और उसके ऑर्गेनेल्स को मिलकर बनाते हैं। Relationship of biology with other sciences. Biology is a multidimensional subject and linked with other sciences. For example, the movement of animals follows the laws of motion in physics. Biology is considered as interdisciplinary science, which is related with other sciences. Some of these are mentioned below. Biophysics. It is a branch of physics, in which laws and techniques of physics are applied to explain the processes of life. The radiophysics branch where radioactive isotopes are used to trace the translocation of different materials within the organisms. Radiolabeling and carbon dating also show some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils. Uses of sound waves as ultrasound and laser technology show relation of physics with biology. बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज के साथ ताल्लुक। बायोलॉजी एक मल्टीडायमेंशनल सब्जेक्ट है और दूसरी साइंसेज के साथ जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर, जानवरों की मूवमेंट फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करती है। इसलिए बायोलॉजी को एआई के इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहा जाता है जो दूसरी साइंसेज से रिलेटेड होती है। बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स फिजिक्स की एआई के ब्रांच है जिसमें फिजिक्स के लॉस और टेक्निक्स को लाइफ प्रोसेसेस समझने के लिए अप्लाई किया जाता है। इसमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ मटीरियल्स की मूवमेंट ट्रेस करने के लिए होता है। रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग फॉसिल्स की एज मालूम करने में मदद देते हैं। अल्ट्रासाउंड और लेजर टेक्नोलॉजी का यूज भी बायोलॉजी और फिजिक्स के ताल्लुक को जाहिर करता है। Biomathematics, biometry, the branch of mathematics which collects data of living organisms. It plays very important role in research. Biochemistry,
It is branch of biology which deals with the study of molecules which form living organisms or cell and requires authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of an organism. Biogeography. It deals with the distribution of different living organisms in different geographical regions of the world. Many living organisms are restricted to particular geographical regions due to environmental conditions. बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री। बायोमैथमेटिक्स मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो जिंदा मखलूक का डेटा कलेक्ट करती है। ये रिसर्च में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो अन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करती है जो जिंदा मखलूक या सेल को बनाते हैं। इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का इल्म दरकार होता है ताकि बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस और अन के फंक्शंस को समझा जा सके। बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में मुख्तलिफ जिंदा मखलूक की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी है। बहुत सी मखलूक एनवायरमेंट कंडीशंस की वजह से खास रीजन्स तक ही महदूद होती हैं, जैसे कि पोलर बेयर और पेंगुइन। Bioeconomics. This deals with the economically important organisms involved in production, e.g. meat production, etc. are calculated for cost value and profit value. बायो इकोनॉमिक्स अन जिंदा मखलूक की स्टडी है जो माशी तौर पर अहम होती है और प्रोडक्शन में शामिल होती हैं, जैसे मीट प्रोडक्शन वगैरह। इन चीज़ों की कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। Careers in biology. The career of student is subject to obtain a degree. The students who have chosen the biology, they can plan to adopt some as a career in following fields: medicine and surgery. Medicine deals with diagnosis and treatment of diseases and surgery deals with repair, replacement or removal of the affected organ. Agriculture. This deals with production of varieties of crops, fruit, vegetables, dairy products, etc. Pakistan being an agricultural country, it can play a very important role. बायोलॉजी में करियर्स। स्टूडेंट का करियर डिग्री हासिल करने से मुतालिक होता है। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी चूज करते हैं वो नीचे दिए गए फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं। मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन बीमारियों की ताशखीस, डायग्नोसिस और इलाज से डील करती है, जबकि सर्जरी मुतासिर हिस्सा रिपेयर करने, रिप्लेस करने या निकालने का काम करती है। एग्रीकल्चर, ज़राअत। एग्रीकल्चर में मुख्तलिफ किस्म की फसलें, फल, सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन होती है। पाकिस्तान एक ज़राअती मुल्क है, इसलिए ये फील्ड बहुत अहम किरदार अदा करती है। Horticulture. This is also part of agriculture, in which work is carried out for the development of new varieties of plants and their products. Forestry. Forests are the source of biodiversity of plants and animals of many kinds which live there. It is important in development of new forests as well as preservation of existing ones. Farming. In this profession, the development of different kinds of farms takes place, such as fish farm, cattle farm, poultry farm, etc. New technologies are used for the production of animals as source of meat and milk, leather, wool, etc. हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है, जिसमें प्लांट्स की नई वैरायटीज और उनके प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं। फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी का सोर्स होते हैं। ये नई जंगला डेवलप करने और मौजूदा जंगलात की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। फार्मिंग। फार्मिंग में मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स डेवलप किए जाते हैं, जैसे फिश फार्म, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म वगैरह। नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एनिमल से मीट, मिल्क, लेदर और वूल हासिल की जाती है। Animal husbandry. This profession is part of agriculture science. It deals with the care and breeding of animals which are beneficial for man. Fisheries. This profession deals with the increased quantity and quality of fish production. Fish is one of the best source of protein. Biotechnology. This is very important and sensitive profession. It deals with manipulation of gene to produce valuable chemical products, such as insulin, growth hormones, interferon, etc. from bacteria as well as others. एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर साइंस का हिस्सा है। इसमें अन्य जानवरों की केयर और ब्रीडिंग की जाती है जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। फिशरीज। फिशरीज फिश की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने का काम करती है। फिश प्रोटीन का एक बेहतरीन जरिया है। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अहम और सेंसिटिव प्रोफेशन है। इसमें जीन्स को मैनिपुलेट करके कीमती केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरॉन वगैरह बैक्टीरिया और दूसरी मखलूक से हासिल किए जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस और करियर्स डिटेल में समझ लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, कुरान और बायोलॉजी, जहां हम देखेंगे कि कुरान ने जिंदगी, मखलूक और साइंस के बारे में क्या रहनुमाई दी है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। अल्लाह हाफिज।